శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. सकाब्धे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम गोत्रोद्भवस्य ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య ఇప్పుడు మీ యొక్క పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య ఇప్పుడు మీ యొక్క భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సపుత్రకస్య ఇప్పుడు మీ యొక్క పిల్లల పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబస్య ఇప్పుడు మీ యొక్క కుటుంబ సభ్యుల పేరు చెప్పుకోవాలి. మీ యొక్క కోరికలను ప్రార్థనలు స్వామివారికి విన్నవించవలసినవి. చెప్పండి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం अभिवृद्ध्यर्थम इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम राजद्वारे राजमुखे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सवम श्रीवैकानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण अहम आचार्य मुखेन कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु. ओम नमो वेंकटेशाय. श्री अलर्मेल मंगा समेत श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे नमः. கண்ணன் அடியினை எமக்கு காட்டும் வெற்பு கடுவினைய இருவினைய கடியும் வெற்பு திண்ணமது வீடென்ன திகழும் வெற்பு தெளிந்த பெரும் தீர்த்தங்கள் செறிந்த வெற்பு புண்ணியத்தின் புகழிதன புகழும் வெற்பு பொன்னுலகிற் போகமெல்லாம் புணர்த்தும் வெற்பு விண்ணவரும் மன்னவரும் விரும்பும் வெற்பு வேங்கட வெற்பென விளங்கும் வேத வெற்பு வேதங்கள் புகழும் புனிதமலை நமது திருமலை. மகரிஷிகளும் ஆழ்வார்களும் ஆச்சாரியர்களும் போற்றுகின்ற இந்த திருமலையில் எழுந்தருளியிருக்கும் கலியுக வரதரான திருவேங்கடமுடையானின் உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமிக்கு அனுதினமும் நடைபெறும் நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. பக்தர்களே, குடியரசு தின விழாவில் உங்கள் எல்லோருக்கும் எங்கள் நல்வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கொண்டு வர்ணனையை ஆரம்பிக்கிறேன். இன்றைய வர்ணனையை செய்வது திருமதி டி.கே. லட்சுமி கிருஷ்ண சுவாமி. திருக்கல்யாணத்தின் ஆரம்பத்தில் சங்கல்பம் நடைபெற்றது. இன்றைய திருக்கல்யாணத்தை பதிவு செய்த பக்தர்கள் அனைவரும் சுவாமி சொல்படி இப்போது சங்கல்பம் செய்து கொண்டார்கள். இதையடுத்து கலச பூஜை,
பின்பு ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனம், அதைத் தொடர்ந்து சுத்தி புண்ணியாக வாச்சன கைங்கரியம், இவை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நடைபெற உள்ளது. எந்த காரியமானாலும் அதில் வரும் தடைகளை நீக்குபவர் சேனை முதலி எனப்படும் ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனர். எம்பெருமானின் நித்திய சூரிகளில் முதன்மையானவர். ஸ்ரீ வைகானசமோ ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திரமோ எந்த ஆகமம் ஆனாலும் ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனரை ஆராதித்த பின்னர்தான் அத்தனை கோவில்களிலும் உற்சவங்கள், ஹோமங்கள், பூஜைகள் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றன. ஆழ்வார்களுள் நம்மாழ்வார் விஸ்வக்சேனரின் அவதாரமாக கருதப்படுகிறார். திருமலையில் திருமலையானுக்கு சமர்ப்பிக்கும் புஷ்பங்களை கலைந்த பிறகு விஸ்வக்சேனருக்கு சமர்ப்பிப்பது வழக்கம். நிஜச்சரண சமர்த்தியாசக்த பக்தோ கரக்ஷி நிவசது ஹிருதயே மே ஸ்வாங்கிரபக்தின் விதன்வன் சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் சதுவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதரம் த்யாயேத் சர்வ விக்னோபசாந்தயேத் ததேவ லக்னம் சுதனம் ததேவ தாராபலம் சந்திரபலம் ததேவ வித்யாபலம் தெய்வபலம் ததேவ லக்ஷ்மீபதே தே கிருகன் ஸ்மராமி யத்ர யோகீஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்தோ தனுர்தரः தத்ர ஸ்ரீ விருத்தயோர்போதி த்ருவாணி திருமதின் மம ஸ்மிருதே சகல கல்யாண பாஜனம் யத்ர ஜாயதே புருஷத்தமஜன் நித்யம் பிரஜாவிஷரணம் ஹரிம் லாபஸ்தேஷாம் ஜகஸ்தேஷாம் குதஸ்தேஷாம் பராபவः ஏஷாம் இந்தே உருதஸ்யாமோ உருதகஸ்தோ ஜனார்தனः ஆபதாமபஹர்த்தாரம் தாதாரம் சர்வசம்பதாம் லோகாபிராமம் ஸ்ரீராமம் பூஜோ பூஜோ நமாம்யஹம் பிராணாநாயம் ய ஓம் பூः अद्य मया पूर्वोक्त एवं गुणविजयजनविष्टायामस्यां सुपतितौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमतिक्लाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमिनीलातमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं शुद्धिपुण्यावादनं करिष्ये आदौ निर्विघ्नेन धुमावाप्त्यर्थं विश्वक्षेणाराधनं करिष्ये ततः कलशाराधनं करिष्ये दारादु सप्तत्सुतमानतेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अभोमिकन्नं प्रतिपादिष्ये कृणोमि दत्ताकुं सुचरकुं सुचर्म इदमापश्चिवः शिवतमाः श्यान्ताः श्यान्ततमा शुभा शुभतमाः पूताः पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्य मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूताः सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञिजाः पाशा वितताः पुरुत्राः तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोद विष्णुर्विश्वे देव अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्य ओं वो वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादुष्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनम् वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुणोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु ओमाग्ने जोजित्मात् प्रजामहे त्वा विश्वेषुदात्मन्महितो न शम्भोः वैराजन्ते सुखदन्निदत्तां प्रैषामतीशो विबुधा नाम नादिः यामे सस्तान्दनिदान् ददातु ओं भो विश्वक्षेणमावाहयामि शान्तमावाहयामि करमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रवतीमावाहयामि वामे दयामावाहयामि विश्वक्षेणाय नमः इदमासनम् विश्वक्षेणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्षेणाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः नित्यानपायिने नमः विश्वक्षेणाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु भवद्वरुणज्ञः सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्तिद प्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापति प्रियतां प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापाणि शाम्यन्त्वा ईतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापाणि शाम्यन्त्वा ईतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापाणि शाम्यन्त्वा ईतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि वं मतो देव अवन्तु यथा विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदे पदं समूढमस्य पागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे
इन्द्रस्वयुज्यस्सक तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्ति शूरयः दिवीव चक्षुरादतं तद्विप्रासो विपञ्जवो जागृमागं सस्यमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाख्यभिर्जनित्राः स्त्रीरङ्गैः सुष्ठुभागं स्वस्तनो बिर्वसेम देवहितं यदायुः सतमिन्नु शरदो अन्त्यदेवायत्राणश्चक्राधुरसन्तनूनः पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यानि ऋषुता युद्धन्तोः अदितिर्झौरतितरन्तरिक्षम् अदितिर्माताश्च पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चदिन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेदो बब्दुषम् यदा वै सूर्य उदेति अदनक्षत्रं ञेति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेदेत्कारे स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानायम्या अस्यां स्मृतिनो श्री श्रीवादस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् सुतपुण्यावादं स्वस्तिं ब्रवन्तो क्रमणे स्वस्ति स्वस्तिं वृद्धिं ब्रवन्तो कर्मरुद्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपो इष्टामयोपवस्थानवोर्जेतदातन महेरनाय चक्षुषे योमस्तुपदमोरजस्तस्य पादयते नः उषतेरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवोजश्चक्षुषा गिजुन्वद आपो जनयदाचनः दिविश्रयस्वान्तरिक्षे तस्मा पृथिव्या सम्भव ब्रह्मवट्टसमच ब्रह्मवट्टसायत्वा पवमानस्तु वर्जनः पवित्रेण वचर्षणिः यस्पोता सुपुनातुमा पुनन्तुमा देवजनाः पुनन्तु मनवोदिया पुनन्तु विश्व आयुवः जातवेद पवित्रवद पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देव दीत्यते अग्ने कृत्वा कृतो गुम्रणो एट्टे पवित्रमट्टसि अग्ने विदतमन्तराः ब्रह्मदेन पुनीमहे उपाभ्यान् देवतविदः समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमाने रज्येति वृषभिः समृद्धं रसं तस्मै सरस्वते गृहे क्षेरकं सर्पिर्मदोदकं पावमाने स्वस्तयनेः सुतगायकुटस्तुतः वृषभिः समृद्धोर्जः ब्राह्मणेषु मृदगं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तुमा प्राजापत्यं पवित्र तदोऽध्यापकं निरण्मयो तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नेते सहमा पुनातु सोमस्वस्या वरुणः समेत्या नमो राजा प्रविणापि पुनातु मा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु तत्संयोरावृणेमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये दैवे स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्जं जगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। प्राच्यान् दिशुदेवा ऋषिजो मार्जयन्तान् दक्षिणायान् दशमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान् दिशुगृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदीत्यान् दिश्या बवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायान् यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अदोदरादरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रतिदानि हस्मान् स्वावेशोहनमेवोपमानः यत्ते न्यूनं प्रतिदन्नोर्धस्वा सन्नयेद्विपदे चतुष्पदे अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्यावचन् सकासुदेव ये दिनः आपोजिष्टामयोपवस्थानवूर्ध्वेदनादन महेरनाय चक्षुषे योमस्य पदमोरधस्तस्य पादगते अनः उषधेरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोजस्य क्षजाग्यजन्वद आपो जनयदाचनः। वरुणाय नमः विश्वक्षेणाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यां समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्षेणाय नमः यदा सुगमदास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில்
விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனமும் புண்ணியாக வாச்சன கைங்கரியமும் இனிதே முடிந்து இப்போது அஷ்டத்துக்கு பாலகர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அங்குரார்ப்பணம் என்கிற மங்கள கைங்கரியத்துக்கு வந்திருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பச்சைமா மலைபோல் மேனி பவளவாய் கமலச் செங்கண் அச்சுதா அமரர் ஏரே ஆயர்தம் கொழுந்தே என்னும் இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திர லோகமாளும் அச்சுவை பெரினும் வேண்டேன் என்று தொண்டடிப்பொடியாழ்வார் ஸ்வர்க்க போகமே கிடைத்தாலும் வேண்டாம், எம்பெருமானின் திவ்ய மங்கள ஸ்வரூபத்தை தினமும் அனுபவித்தால் மட்டும் போதும் என்று திருமாலையில் பாடினார். அவர் பாடியது திருவரங்கத்தில் பள்ளி கொண்ட எம்பெருமானை பற்றி. இங்கு நாம் அதே பாசுரத்தை இந்த திருமலையில் எழுந்தருளியிருக்கும் திருவேங்கடத்து எம்பெருமானுக்கும் சமர்ப்பிப்போம். நாம் வேண்டுவதும் இதைத்தானே. இவரது தரிசனம் மட்டும் தினமும் கிடைத்தால் அதுவே நமக்கு போதுமல்லவா? அந்த பாக்கியத்தை நமக்கு இந்த ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தார் தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பக்தர்களே, சாதாரண மானிட பிறவிகளாகிய நாமே ஏதாவது ஒரு மங்களமான காரியத்தை செய்ய வேண்டுமானால் எத்தனை முன்னேற்பாடுகள் செய்கிறோம். நாள், நட்சத்திரம், நேரம், காலம், சகுனம் என்று எத்தனையோ பார்க்கிறோம். இதுவோ பகவத் கைங்கரியம். இதற்கு நாம் எவ்வளவு முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். ஆகவேதான் எம்பெருமானின் நித்திய சூரிகளில் ஒருவரும் சேனா நாயகருமான ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனரை பிரார்த்தித்து கொண்டு அவரிடம் அனுமதி பெற்றுக்கொண்டு பூஜைகள் செய்த பின்னர் மங்கள நீரால் திருக்கல்யாணம் நடைபெறுகிற இடத்தை புண்ணியாக வாசனம் செய்துவிட்டு இந்த அஷ்டத்திக்கு பாரர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணும் கைங்கரான அங்குரார்ப்பணத்தை அர்ச்சக சுவாமி செய்கிறார். கண்ணாய் ஏழுகலக்கு உயிராய் எம் கார் வண்ணனை விண்ணோர் தாம்புகழும் வேங்கட வேதியனை தின்னார் மாடங்கள் சூழ் திருமங்கையர் கோன்கலியன் பன்னார் பாடல் பத்தும் பயில்வார்க்கில்லை பாப்பங்களே என்று திருமங்கையாழ்வார் திருவேங்கடவனை மங்களாசாசனம் செய்யும் காலத்தில் துவாபரயுகத்து கண்ணனும் கலியுகத்து திருவேங்கடவனும் ஒருவரே என்று உறுதிபடச் சொன்னார். அன்று குருட்சேத்திரத்தில் தேர்க்கட்டலில் நின்று கொண்டு பார்த்தனுக்கு கீதையை உபதேசித்த அந்த பார்த்த சாரதியே இதோ இங்கே திருவேங்கட மலை மீது நின்று கொண்டு நம்மையெல்லாம் ரட்சிக்க வந்திருக்கிறார். எம்பெருமான் சௌலபியன், நம்மால் சுலபமாக அடையக்கூடியவர். இவரிடம் ஓடிவர நாம் ரிஷி முனிகளைப் போல தபஸ்களோ யாகங்களோ ஹோமங்களோ செய்ய வேண்டியதில்லை. கோவிந்தா கோவிந்தா என்கிற நாமாவளியை சொல்லிக்கொண்டு இந்த 7 மலைகளையும் ஏறி வந்து அவரது திருப்பாதங்களை சரணமடைந்தாலே போதும். இதோ உங்களுக்காக நான் இருக்கிறேன் என்று அபயஹஸ்தத்தை காட்டுகிறார். அங்குரார்ப்பணம் முடிந்து அடுத்து எம்பெருமானுக்கும் பிராட்டிகளுக்கும் இன்று சமர்ப்பிக்க இருக்கும் அந்த ரட்சைகளுக்கு சாஸ்திரோக்தமாக இப்போது பூஜைகள் செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. ஸ்ரீ வைகானச ஆகமப்படி நாகராஜனையே இந்த ரட்சையில் ஆவாகனம் பண்ணுவதாக ஐதீகம். ஆகவே இப்போது நாகராஜனை ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அந்த பூஜையை கவனிப்போம். நாகராஜமாவாஹஜாமி தத்புருஷமாவாஹஜாமி அனந்தமாவாஹஜாமி சேஷாய நமः இதமாசனம் சேஷாய நமः பாத்யம் சமர்ப்பயாமி அர்घ्यं சமர்ப்பயாமி ஆச்சமணியம் சமர்ப்பயாமி சேஷாய நமः புண்ணியபுஷ்பைः பூஜயாமி சேஷாய நமः குலோபஹார நிவேதயாமி தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி சேஷாய நமः சர்வோபசாரான் சமர்ப்பயாமி. हरिः ओं स्वस्ति नो मिमीतामश्विनामक स्वस्ति देव्यतिथि नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो ददातु न स्वस्ति ध्यावः पृथिवी सुचेतुनः स्वस्तये वाजुरुपब्रमामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये देवा उदरग्ने स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपाध्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति भद्रे रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृते स्वस्ति पञ्चामनुचरेमि सूर्याचन्द्रमसामिव पुनर्ददाज्ञादासन्तमेमहे स्वस्तैनन्द्राच्युमरिट्टने महद्बोधम्बायसन् देवतानां ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं दारयतां ध्रुवं शुभगुं शुभम्. பக்தர்களே,
ரட்சை பூஜை இனிதே முடிந்து இதையடுத்து ரட்சாபந்தன கைங்கரியம் இப்போது தொடங்க உள்ளது. கம்பமத யானை கழுத்தகத்தின் மீளிருந்து இன்பமரும் செல்வமும் இவ்வரசும் யான் வேண்டேன் எம்பெருமான் ஈசன் எழில்வேங்கட மலைமேல் தம்பகமாய் நிற்கும் தவமுடையேன் ஆவேனே. எத்தனை எளிமை! குலசேகரர் கொல்லிமலை காவலர், நாடாளும் அரசர். அப்படி இருந்தும் யானை மீது பவனி வந்து அரசாளும் பதவி வேண்டாம், எம்பெருமான் நின்ற கோலத்தில் சேவை தரும் அந்த திருவேங்கட மலை மீது ஒரு கம்பமாய் நிற்கும் பேற்றை வேண்டினார். ஒரு சக்கரவர்த்தியே இப்படி ஒரு கைங்கரிய பாக்கியத்தை வேண்டும் போது நாம் எல்லோரும் இன்னும் எவ்வளவு செய்ய வேண்டும்? எற்றைக்கும் ஏழேழு பிறவிக்கும் உன்றன்னோடு உற்றோமே யாவோம் உனக்கே நாமாட் செய்வோம் என்று ஆண்டாள் பிராட்டி பகவானிடம் சொன்னதை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டுமல்லவா? எங்களால் என்ன செய்ய முடியும் என்று பக்தர்கள் கேட்கலாம். அந்த எம்பெருமானை மனதிலே தியானித்துக் கொண்டு அந்த மந்திர ஒலிகளை கேட்டுக்கொண்டு இந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்தை தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறோமே, இது கூட ஒரு கைங்கரியந்தானே. ஆனால் இந்த கைங்கரியத்தை நாம் மனசால் வாக்கால் மெய்யாக ஈடுபாடோடு செய்ய வேண்டும். அங்கே இங்கே பார்த்து கொண்டு கண்டதையும் நினைத்து கொண்டு சிறு திண்டுகளை கொறித்து கொண்டு வேடிக்கை பார்ப்பது போல பார்ப்பது கைங்கரியமில்லை. ஈடுபாடு, பக்தி, பகவத் விஷயங்களை கேட்கும் ஒரு ஆசை இருக்க வேண்டும். வினரோ பாக்யமு விஷ்ணு கதா என்றார் அல்லவா அன்னமையா? அதுபோல இது நமக்கு கிடைத்த பாக்யம், வாய்ப்பு என்று நாம் நினைக்க வேண்டும். அந்த வகையில் அந்த எம்பெருமானை மனதிலே தியானித்துக் கொண்டாலே அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் அல்லவா? அப்படிப்பட்டதை தான் நம்மிடம் எதிர்பார்க்கிறார் எம்பெருமான். அவரிடம் நம்மையெல்லாம் வந்து சரணமடைய சொல்கிறார். சரணம் என்றதும் ஒரு விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது. அதுதான் எம்பெருமானிடம் நாம் பண்ண வேண்டிய சரணாகதி. சுவாமி தேசிகன் காஞ்சி தேவப்பெருமாளை வேண்டி செய்த அடைக்கலப்பத்து என்கிற பாசுரங்களில் தெரிவிக்கும் விஷயம் இதுதான். பத்தி முதலாம் அவற்றில் பதியனுக்கு கூடாமல் எத்திசையும் உழன்றோடி இழைத்து விழும் காகம் போல் முக்தி தரும் நகரேழில் முக்கியமாம் கச்சிதனில் அத்திகிரி அருளாளர்க்கு அடைக்கலம் நான் அடைந்தேனே. ராமாவதார காலத்தில் வனவாசத்தில் பர்ணகசாலையில் சீதா பிராட்டியின் மடி மீது தலை வைத்து கண்மூடி யோக நித்திரையில் ஆழ்ந்திருந்தாராம் ராமன். அப்போது இந்திரன் மகனான ஜெயந்தன் காகத்தின் ரூபம் எடுத்து வந்து தேவியை இம்சித்தானாம். தனது மணாளனின் உறக்கம் கலைந்து விடுமோ என்கிற அச்சத்தில் பிராட்டி அந்த வலியை வேதனையை பொறுத்து கொண்டிருந்தாளாம். கண் விழித்து எழுந்து இந்த காட்சியை கண்ட ராமன் கோபத்துடன் பாணத்தை விட பயந்து ஓடிய காகம் அபயம் கேட்டு கைலாசம் சத்தியலோகம் உட்பட எல்லா லோகங்களையும் சுற்றி எவரும் அபயம் தர மறுக்க முடிவாக ஸ்ரீ ராமச்சந்திரனின் பாத கமலங்களில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டு சரணமடைந்ததாம். இதைத்தான் சுவாமி தேசிகன் தனது பாசுரத்தில் குறிப்பிட்டு அந்த காக்கையைப் போல கட்டுக்கடங்காமல் அலையும் என் மனதை உனது திருவடிகளில் அடைக்கலமாய் வைத்தேன் என்று பாசுரமிட்டிருக்கிறார். அதுதான் சரணாகதி. நாமும் இந்த சம்சார துன்பங்களிலிருந்து விடுபட கோவிந்த நாமாவளியை சொல்லிக்கொண்டு இந்த திருவேங்கட முடியாரிடம் சரணாகதி பண்ணோமானால் நம்மையெல்லாம் காத்து ரட்சிக்க வேண்டும் என்கிற சங்கல்பத்தோடு உறுதியோடு வைகுண்டத்தை விட்டு இறங்கி இந்த பூலோக வைகுந்தமான திருமலையில் எழுந்திருக்கும் எம்பெருமான் நம்மை ரட்சித்தே தீருவார். அவரது அந்த சங்கல்பத்தை உறுதிப்படுத்தவே நமக்காக அர்ச்சக சுவாமி இந்த ரட்சையை எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பித்தார். அடுத்து எம்பெருமானையே மணாளனாக அடையும் அந்த திருமகளுக்கு முதலில் இப்போது ரட்சையை சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, அருகில் இருப்பவளோ பூமாதேவி. பூ என்றால் பூமண்டலம். அந்த பூமண்டலத்துக்கே அரசி, பூமித்தாய். நாம் எல்லோரும் அவளுடைய மடிமீது தவழும் குழந்தைகள். நம் குற்றம் குறைகளை பொறுத்தருளும் அந்த பூமி மாதாவிற்கும் ரட்சையை சமர்ப்பிக்க வேண்டுமல்லவா?
ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின அந்த பூமி தேவிக்கும் இதோ இப்போது அர்க்யம், பாத்தியம், ஆச்சமனம் போன்ற உபச்சாரங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இதையடுத்து எம்பெருமானின் சார்பாக முதலில் அந்த ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு இதோ அந்த மந்திரித்த ரட்சையை சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, இந்த ஸ்ரீதேவி தாயாரின் கடைக்கண் பார்வை ஒன்று போதுமே. அவளது அந்த பார்வையின் நோக்கில்தான் எம்பெருமான் நமக்கு சகல மங்களங்களையும் தருவதாக நம்மாழ்வார் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். திருமாமகள் கேள்வா என்று அவர் பாசுரமிட்டது நினைவிருக்கலாம். அந்த திருமாமகளுக்கு இப்போது முதலில் அந்த மந்திரித்த ரட்சையை எம்பெருமானின் சார்பாக இதோ இப்போது சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, லக்ஷ்மீரமண கோவிந்தா கோவிந்தா, ரமாரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இந்த சியாமளாங்கியை முன்னிட்டு கொண்டு நாமும் அவளது மணாளனான அந்த கோவிந்தனை சரணமடைவோம். இதோ தாயாரின் திருக்கரத்தில் அந்த மந்திரித்த ரட்சையை இதோ சமர்ப்பிக்கிறார். அகலகில்லே நிறையுமென்று அலர்மேல் மங்கை உரை மார்பா, நிகரில் புகழாய் உலக மூன்றுடையானே, என்னை ஆழ்வானே, நிகரில் அமரர் முனிக்கணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே, புகழென்றல்லா அடியேன் உன் அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே என்று நம்மாழ்வார் பாசுரமிட்டது இந்த தாயாரை முன்னிட்டு கொண்டுதானே. அடுத்து அதோ பூமிதேவி திருவாடி பூரத்த ஜகதுதித்தாள் வாழியே, திருப்பாவை 30 செப்பினாள் வாழியே, பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண்பிள்ளை வாழியே, பெரும்புதூர் மாமணிக்கு பின்னானாள் வாழியே, 143 உரைத்தாள் வாழியே, உயரரங்கற்கே கன்னி உகந்தளித்தாள் வாழியே, மறுவாரும் திருமல்லி வளநாடி வாழியே, வன்புதுவை நகர்கோதை மலர்ப்பதங்கள் வாழியே என்று அந்த பூமி பிராட்டியை ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின அந்த தாயாரின் திருவடிகளை நாமும் இப்போது பற்றி கொண்டு அவளது மூலமாக அவளது மணாளனான அந்த கோவிந்தனை நாம் சரணமடைவோம். அடுத்து இன்றைய திருக்கல்யாண உற்சவத்தை இதோ நமக்காக பக்தி ஸ்ரத்தையோடு நடத்தி கொண்டிருக்கும் அந்த அர்ச்சக சுவாமிக்கும் मयि देवान्द्रवणमाय जन्तां मय्यासेनस्तु मयि देवहूतिः दैव्या होता रामरशन्त पूर्वेरिष्टास्याम तनुवात् सुवीराः उद्धन्यमानमस्यामेद्यपात्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानस्सन्तु प्रथमे तन्नो शाता प्रथमे धोकशाता कोतक्षतनेन सौम्या कृणद्भगं रचना भूतविगं दद तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्थण्डिले भूमिमावाहयामि रेखाया स्कन्दमावाहयामि रेखा गायत्र्याः प्रोक्ष्य जातवेदो अग्निं गृहीत्वा जातवेदो भुवनस्यरेदो हिदन्तदपदज्ञनिष्यते अग्निमस्वस्तादधव्यगुं तुमी गर्भाजनयन्योमयो भूः कृतप्रदेको कृतयो निरग्ने कृतस्तमिज्ञो कृतमस्यान्नं कृतप्रवश्वासरिदो विमन् कृतं ब्रह्मन् सरजा यक्षदेवान् आजुर्दाग्ने हविषो दुषाणो कृतप्रदेको कृतयो निरेति तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवदविदप्रसुव वं ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विधीमतत्सुरचो वेनावः स बुद्ध्यापमाश्चमिष्टा तत्सयोनमतत्स्वः वं भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो देनकं सोमोर्वन्दमाचकं सोमो वीरङ्कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदत्तकं तुमेयं विदस्त्रोणो यो ददातु तस्मै ओं भू सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमाय नमः गुलोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतावर्तिकत्वन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्रलोकतत्रैव यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतावर्तिकत्वन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्रलोकतत्रैव यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष्य पात्रादादावमादाय
पवित्रेऽस्तो वैष्णव्येऽस्तो यज्ञेऽस्तो वाजपूतेऽस्तो विष्णो मनसा पूतेऽस्तो यज्ञस्य भावनेस्तः दिवे त्वा अंतरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा कोशाय त्वा स्वाहा देवेभ्यः आदित्यव्यञ्जनमसि पश्चिमतो विष्टो स्तूपोऽसि दक्षिणतो विष्टो स्तूपोऽसि उत्तरतो विष्टो स्तूपोऽसि प्राच्यां विष्टो स्तूपोऽसि श्रुतासि कृतासि ध्रुवासि तारुणासि विष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मं प्रणेष्यामि च मानवाचं यच्च सोम प्रणेष्यामि च मानवाचं यच्च प्रणयज्ञं देवता व्रतयत्वं नागच्छ पृष्ठे च मानोऽस्तु सप्तऋषीणाकं चुकृतां यत्र लोकस्तत्र विघ्नं यजमानं च देहि ओम प्रणय सोम प्रणेष्यामि प्रणयज्ञं देवता वर्तयत्वं नागच्छ पृष्ठे च मानोऽस्तु सप्तऋषीणाकं चुकृतां यत्र लोकस्तत्र विघ्नं यजमानं च देहि ओम प्रणय तोबो यनत्कु सबो यनत्कु सभ्यजन्तान् विष पात्राणि देव यज्ञायि सभ्यजन्तान् विष पात्राणि देव यज्ञायि दक्षिणमणितो ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुदानावाहयामि रुद्राणावाहयामि अभवत्पुष्य श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षे देवतसोममावाहयामि ओमाद्रिग्नमावाहयामि यज्ञदेवेभ्यो देवेभ्यो सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतिष्टनिर्वपामि इंद्राजुष्टनिर्वपामि अग्नेजुष्टनिर्वपामि सोमाजुष्टनिर्वपामि अग्निसोमाभ्याकुष्टनिर्वपामि प्रजापतिष्टनिर्वपामि ब्रह्मणोजुष्टनिर्वपामि वसुभ्योजुष्टनिर्वपामि वरुभ्योजुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्योजुष्टनिर्वपामि अपोमुत्पृश्य श्रीविष्णुवेजुष्टनिर्वपामि बृहस्पतिजुष्टनिर्वपामि मित्राजुष्टनिर्वपामि वरुणाजुष्टनिर्वपामि आदित्येभ्योजुष्टनिर्वपामि असुभ्याकुष्टनिर्वपामि पूष्णेजुष्टनिर्वपामि कक्षाजुष्टनिर्वपामि कक्षदेवतसोमाजुष्टनिर्वपामि उपाश्रज्ञाजुष्टनिर्वपामि यज्ञदेवेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि आद्यं च प्रतिष्ठयामि चरन्द्र प्रतिष्ठयामि अग्ने ज्योतिरसि समिति स्वाहा अमृतुणमसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्ष अन्तरिता आराधयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा आराधयः चिक्वति स्वापुना त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्वतिस्वा पुनः त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वा पुनः त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कलसम्पूर्णा समितो गृहीत्वा मूलाग्रह कृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षता आध्याचरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृत्ये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदते नमः सहोजसे नमः अजराप्रवे नमः विषर्पणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसमितप्रसुव ब्रह्मन् सोमुक्तमादास्व आदस्व समेतयस्वाहा आगार मुहूर्तस्तु मुहूर्तोस्तु परिदेश स्पृष्ट्वा वायुव्यादाग्नेय अन्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादिशान अन्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा वसुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोष्पृष्ट श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपाश्रज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वदेवेभ्यो स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भूर्भुव सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसवितप्रासावीः प्राणानायम्या अस्यां सुपतितो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाकोचकन्माङ्गमोपासराख्यो सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवाज वैष्णवहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवदवितप्रसुभ ओम मतो देवावन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयदानदेवदं सुमूढमस्यमागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा
विष्णो कर्माणि पश्यतेदो वृदानि पस्पसे इन्द्रस्य युद्धस्य स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं तदा पुष्कन्त शौर्यः दिवेव दक्षुराद दग्धस्वाहा तद्विप्राशो विपण्यवो जाग्रवाकं तस्कमिन्ददे विष्णोर्यत् परमं पदक स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भूर्भुव स्वाहा अददैन्वमग्गुस्ताः अनुमदैन्वमग्गुस्ताः सरस्वदैन्वमग्गुस्ताः देवदविद प्रासावीः निज चरण समर्थ्या सक्त भक्तो गरक्षे निवसतु हृदये मे स्वाग्रभक्तिं वदन्वन् अत भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यात् परमितशक्त्या प्रियमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममाणानामनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमे पृथिव्यप्तेजो वायुप्राकाशाहङ्कारमहदव्यक्ताख्य सप्तावरुणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारदक्ति श्रीवराहकूर्मानन्ताष्ट दिग्गजो प्रविदृष्टितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां मूर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानामधोभागे महानालायमानस्य फणिराजश्चेजस्य सहस्रफणाफणिमण्डलमण्डिते ऐरावतपुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम अष्टदिग्दण्डि सुण्डाद्दण्डोद्दम्बिते अमरावते तेजोपते संयमनि रक्षोपते सिन्धुमते गन्धवत्यलकावते यशोपते त्वष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमुनिरुतवरुणवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकान् लोकान् चलमलयिते लवणेक्षुरासर्पिर्ददिक्षेण शुद्धोदकाख्य सप्तान्नपनिवृते जम्बू प्लक्षकुचक्रौञ्च शाकशाल्म्य पुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलयमदृक्ष्वेदिन्द्यपारयात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारतकं पुरुष हरीराब्धभद्रास्वकेतुमाला हिरण्यकरमणककुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखण्डे महासरौरहाकार पञ्चाशत्कोटि योजनविस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजनविस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे कृष्णाकावेर्योर्मध्यप्रदेशे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेङ्कटाचले सकल देवताः सन्निधौ सकल जगत्त्रष्टुः परार्धयज्जीवनो ब्राह्मणोत्पत्तीय परार्थे प्रथमवर्षे प्रथमपक्षे प्रथमेहनि द्वितीयायामे इह जन्मनि च हे दक्षिणपर्यन्तं बाल्य यौवन कौमारवार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्तनावृत्त महापातकादि समस्त दुर्दक्षयार्थं ततपूर्वेषां तथा परेषां मद्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां च कुम्भीपाकलोहितधामातिपसङ्गातः कालसूत्रादिवदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः वृत्तेन्द्रे सूर्यमण्डलपर्यन्तम् आमोद ब्रह्मोद संहोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायणप्रेत्यर्थं भृगुमरीचत्रकस्यपादिभिः कोटिचातुर्लक्षप्रणानेन दिव्यवैदिकविधानेन नानाविधशास्त्रोक्तमार्गेण वेदोक्तप्रकारेण विकलसोक्तप्रकारेण हेमाद्रकन्यादानफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणकगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैगानतभगवत्शास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य पञ्चविधव्योः प्रवर्तमानस्य परतत्विभवव्योऽन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोऽन्नत्रे आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयोक्षातिवसात् उत्पस्थितलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय
आंगेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मणिगण विजृंभित पादार विंदस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राज आंगेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाज भक्तलोक परिपालनाज किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताज दिव्य कौस्तुभालंकृताज दिव्य पीतांबरधराज दिव्यमाल्यो शोभिताज प्रपन्न पारिजाताज निज अवताराज स्वर्ण गरुड़ वाहनारूढ़ाज अचिंत्यात्मक नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराज अकल शाखाध्यायिनो अखिल लोक गोत्रोद्भवाज श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताज श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराज ऋग्यजुश्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिनी भार्गवत्यो औरवैंदुल पंचारुषेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवी सर्वालंकारवती सुरांगना संसेवित बाधारविंदा श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनी आनंद गुणात्मिका मूल प्रकृति रूप उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासो जाता इमां श्रीदेवी नाम्नी कन्या वृणीमहे वृणीत्वन्धास्यामि ऋग्यजुश्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिनी काश्यपावत्सारणै ध्रुवत्रयारुषेय प्रवरान्वित काश्यपद गोत्रोद्भवी सर्वालंकारवती सुरांगना संसेवित बाधारविंदा श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरी अत्यंत सौंदर्यवती रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातां कश्यप प्रजापते संकल्पतनया मां भूदेवी नाम्नी कन्या वृणीमहे वृणीत्वन्दास्यामि कन्या कनक संपन्ना कनकाभरणैर्युता दास्यामि इष्टवे तुभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षयेत् कन्या स्वलंकृतां सास्मि सुशीलाय सुमेधसे इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादान मुहूर्तस्तु मुहूर्तोस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभम. பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் பிராட்டிமார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு கன்யாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வு மங்களகரமாக நிறைவேறியது. அடுத்த நிகழ்வு திருமாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் அந்த திருமாங்கல்யங்களை மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி பின் ஷோடச உபச்சாரங்கள் செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. அதன் பின்பு மஞ்சள் குங்குமம் அர்ப்பித்து எம்பெருமானின் திருவடிகளில் வைத்து மானசீகமாக பூஜைகள் செய்வார். நாமும் இப்போது அந்த திருவடி சம்பந்தத்தை தான் பேசப் போகிறோம். பகவான் நம்முள்ளேயே அந்தராத்மாவாக இருக்கிறார். அவர்தான் நம்மை வழி நடத்துகிறார் என்பதை உணர்ந்தோமானால் பிரச்சனையே இருக்காது. அவரது திருவருளைத்தான் உயர்ந்த விஷயம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை. அதுவே நம்மை பகவானின் திருவடிக்கு அழைத்துச் செல்லும். அந்த திருவடியின் பெருமையை இந்த ஒரு சிறிய கதையின் மூலமாக தெரிந்து கொள்ளலாம். அது ஒரு கிராமம். அந்த ஊரில் ஒரு கிருஷ்ணர் கோவில். அந்த கோவில் அர்ச்சகரின் பெயர் நாராயண பட்டர். அவர் மிகுந்த பக்தியுடன் அந்த கோவிலில் திருப்பணிகளை செய்து கொண்டிருப்பதோடு அல்லாமல் எம்பெருமானுக்கு பூஜையும் அவரேதான் செய்வாராம். வருகிற சொற்ப வருமானத்தில் அவர்கள் குடும்பம். இதில் அவருக்கு எந்தவிதமான குறையும் இல்லை. ஆனால் குறை இருந்தது அவரது மனைவிக்கு. 4 பேரைப் போல வசதியாக வாழ முடியவில்லையே என்று ஏக்கம். தன்னுடைய ஏக்கத்தை தனது கணவரிடம் சொல்கிறாள். இதைவிட வேறு வேலை செய்தால் நல்ல ஊதியம் வருமே என்று அவள் சொல்வதை பார்த்து சிரித்தாராம் நாராயணன். உனக்கு பணம்தானே வேண்டும்? நாளைக்கு நீ நம் அரசனிடம் சென்று இதோ இந்த பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்ணின இந்த புஷ்பத்தை கொடுத்து இதற்கு சமமான பொன்னையோ பொருளையோ வாங்கி வா என்றாராம். மனைவிற்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லை. இருந்தாலும் அவர் பேச்சை தட்டாமல் அந்த புஷ்பத்தை எடுத்துக்கொண்டு அரசனிடம் போனாளாம். காவலர்கள் அவளை அரசனிடம் கொண்டு போனார்கள். அவள் கோவில் பூஜாரியின் மனைவி தன்னிடம் ஏதோ பணம் கேட்க வந்திருக்கிறாள் என்கிற எண்ணத்தில் ஒரு பண மூட்டையை அவளுக்கு கொடுத்தாராம் மன்னன். ஆனால் அவள் அதை ஏற்கவில்லை. என் கணவர் இதோ இந்த புஷ்பத்துக்கு சமமான பணத்தை மட்டும் வாங்கி வர வேண்டும் என்று சொல்ல அரசருக்கு ஆச்சரியம்.
இந்த புஷ்பத்துக்கு சமமானமாகவா? சரி, தராசு தட்டை கொண்டு வாருங்கள் என்றான். தராசு தட்டில் ஒரு தட்டில் அந்த புஷ்பத்தை வைத்துவிட்டு இன்னொரு தட்டில் அந்த பணமூட்டையை வைத்தான். என்ன ஆச்சரியம்! புஷ்பம் இருக்கும் தட்டு கீழே இருந்தது. இன்னும் நிறைய பொன்னும் பொருளும் கொண்டு வந்து வைத்தான். அப்போதும் தட்டு சமமாகவில்லை. அரசனுக்கோ ஒன்றும் புரியவில்லை. கஜானாவே காலியாகும் போல் ஆகிவிட்டது. உடனே ஒரு பல்லக்கை அனுப்பி அந்த அர்ச்சகரை அழைத்து வரச் சொன்னான். நாராயண பட்டரும் வந்தார். அரசர் கை குவித்து, நீங்கள் அனுப்பிய அந்த புஷ்பத்தின் மகிமை விளங்கவில்லையே என்று கேட்க, பட்டர் சிரித்துக்கொண்டே, இதில் மர்மம் எதுவும் இல்லை. நீங்களும் நீராடிவிட்டு பக்தியுடன் எம்பெருமானை மனதிலே தியானித்துக் கொண்டு புஷ்பத்தால் எம்பெருமானின் திருவடியை அர்ச்சித்துவிட்டு அந்த புஷ்பத்தை கொண்டு வந்து இந்த தராசு தட்டில் வையுங்கள் என்று சொன்னாராம். அரசனும் அவர் சொன்னபடியே செய்து தான் அர்ச்சித்த அவரது திருவடியை அர்ச்சித்த அந்த புஷ்பத்தை கொண்டு வந்து அந்த தராசு தட்டின் இன்னொரு பக்கத்தில் வைத்தானாம். என்ன ஆச்சரியம்! இரண்டு தட்டும் சமமாகிவிட்டதாம். பக்திக்கு முன்னால் எந்த பொன்னும் பொருளும் சமமாகாது என்பதை அரசன் மட்டுமல்ல, அந்த பட்டரின் மனைவியும் புரிந்து கொண்டாராம். அரசன் அவரை கைகூப்பி வணங்கி அவருக்கு வாழ்வாதாரத்துக்கு வேண்டிய பொன்னும் பொருளும் கொடுத்து அனுப்பியதோடு அந்த கோவிலின் பராமரிப்புக்கு வேண்டிய அத்தனையும் செய்து கொடுக்கும்படி தனது அமைச்சரிடம் கட்டளையிட்டாராம். பக்தர்களே, பக்தியின் மகிமையை பார்த்தீர்களா? என்னவே இருந்தாலும் அந்த பக்திக்கு எதுவும் ஈடாக முடியாது என்பதை காட்டிவிட்டார் அல்லவா? எம்பெருமான் நம்மிடம், அதாவது தன்னிடம் இழுக்க ஒரே சாதனம் என்ன தெரியுமா? பக்திதான். பக்தி என்பது ஒரு புதிய விஷயமில்லை. நாம் எம்பெருமானிடம் வைக்கின்ற ஒரு தீவிரமான அன்பே பக்தி. அது அமிர்தம் போன்றது. அசுர குழந்தையான பிரகலாதனும் ஸ்ரீராம தூதனான ஹனுமனும் பக்த துருவனும் கொண்ட பக்தி இதுதான். இந்த பக்தி மட்டும் இருந்துவிட்டால் நாம் உண்ணும் உணவே பிரசாதமாகிவிடும், பருகும் நீரே தீர்த்தமாகிவிடும், பாடும் பாட்டே கீர்த்தனங்களாகிவிடும், செய்கின்ற பிரயாணம் யாத்திரையாகிவிடும், நமது உள்ளமோ கோவிலாகிவிடும். ஆகவே அப்படிப்பட்ட பக்தியோடுதானே இதோ இந்த திருமலைக்கு பக்தர்கள் அனைவரும் ஓடி வருகிறார்கள். உலகத்தின் எல்லா மூலைகளில் இருந்தாலும் அந்த பக்தர்களை அழைக்கும் ஒரு சக்தி, காந்த சக்தி நமது திருமலையானிடம் உள்ளது. ஆகவே திருமலையானை சேவிக்க வரும் பக்தர்களுக்கு இது திருமலை யாத்திரதானே. கோவிந்த நாமாவளியை சொல்லிக்கொண்டு இருகரங்களையும் மேலே தூக்கி அந்த திருவேங்கடத்து எம்பெருமானை நாமும் சேவிப்போம். எம்பெருமானே என்று அவரது திருவடியை பூஜிப்போம். இற்றை பறைகொள்வான் அன்றுகான் கோவிந்தா என்று ஆண்டாள் பிரார்த்தியை போல அந்த எம்பெருமானிடம் இருகரம் கூப்பி அவரது திருவருளை வேண்டுவோம். प्रजापतिस्त्व मगं राजानमुसृजतां तन्त्रयो वेदान्वदृभ्यन्तां तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि.
प्रजापतित्वमकुं राजानमुद्रजताम् तन्त्रजो वेद अन्वतृध्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुत अतः सीता सावित्री भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभम् प्रधान होमं गृह्येत तेन मन्यस्मानुमतेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवतविद प्रसुमा इमं मे वृणस्रुते होमञ्जात वृणया त्वामम सुराचके स्वाहा तत्त्वाजामि ब्रह्मणो वन्दमानसजासा सेजमानो हविर्भिः अहेण मानो वृत्पोज्रसुगं समानाय प्रमोषे स्वाहा त्वन्नो अग्नेवरणस्य विद्वान् देवतहेडो वजाति चेष्टाः यदिष्टवह्नितमस्सोच जानो विश्वान् देशागुंसि प्रमद्यस्म स्वाहा सत्वन्नो अग्ने मो भवति नेदिष्टोऽब्जस्यां सदोऽब्जष्टो अभजक्ष्मणो व्रीहिमीडिगुं सुभजानयोदस्वाहा तुमग्ने अयासन्यजासन्यतः अजासन् हव्यमो ईशयानो देहिवेषदग्गु स्वाहा चित्तं च स्वाहा चित्तिश्च स्वाहा आकूतं च स्वाहा आकूतिश्च स्वाहा विज्ञानं च स्वाहा विज्ञातं च स्वाहा मनश्च स्वाहा चक्वरेश्च स्वाहा पूर्णमादश्च स्वाहा ओं भूर्स्वाहा ओं भुवस्वाहा भोगं शुभस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदिदेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवतविदप्रासामेः प्राणानायम्या सुमतिदौत्रे श्रीनिवासस्वामिनः वैवाग्गोचकर्माङ्गोपासनाख्यो लाजहोमं गृह्ये अतिदेन मन्यस्मानवदेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवतविदप्रसुभा इमाल्लाजानमित्यभिकार्या इमां लाजानावपामि समृद्धकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमन्यता यन्नाद्रुपब्रोतेऽग्न्यो लाजानाववन्ते दीर्घायुरस्त्वमेव दिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा
इमां लाजानावपामि समृद्धकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नाद्रुपब्रोदेऽग्न्यो लाजानावपन्ति दीर्घाजुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा बालाजानावपामि समुद्रकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नाद्रुपब्रोदेऽग्न्यो लाजानावपन्ति दीर्घाजुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा अददेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सहस्वदेन्वमग्गुस्ताः देवतविदप्रासाभिः प्राणानायम्यास्यां सुपतिदौत्रे श्रीनिवासस्वामिनः वैवाग्गोतकर्माङ्गोपासनाख्यो सर्वदोजप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिविष्णुहं होष्ये अदितेन मन्यस्मा नमदेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवतविदप्रसुमा ओम मतो देवावन्तनो यदा विट्टर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाह इदं विट्टर्विचक्रमे त्रयधानितदेवतं समूढमस्य भागं त्रय स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विट्टर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पस्कते व्रतानि पस्पते इन्द्रसुगज्जसगा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं तदा पश्यन्ति शौर्यः दिवेव चक्षुरात् दग्गु स्वाहा तद्विप्राशो विपञ्चवो जाग्रवाकं तस्कमिन् ददे विष्णोर्यत् परमं पदग्गु स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा अददेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वदेन्वमग्गुस्ताः देवतविदप्रासाभिः प्राणानायम्या अस्यां सुमतिदौत्रे श्रीनिवासस्वामिनः वैवाग्गोचकर्माङ्गोपासनाख्यो उपरिष्टादन्त होमं दृश्ये अददेन मन्यस्मा नमदेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवतविदप्रसुभा यदस्य कर्मणोत्तरेदं जत्वान्यो न मिहाकरम् अग्निस्तुष्टुगुद्विद्वान् सर्वगुसुगुदं करोतु स्वाहा अग्नये चुटहृदहुदैनां कामानागुसुमध्ये त्रये स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्निनादाय स्वाहा अग्निनपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवाणादिष्टं दैवतममुष्मै स्वाहा अग्नये शुष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मा भूदग्निस्तत्पुनरागः जातवेदावदर्शने स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे श्रमाय मां चक्षुरादित्य मोक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वचननिष्ठेभ्य स्वाहा बेजरुत्यै स्वाहा विष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा तनूभ्य स्वाहा सर्वस्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा एदो अश्वेदिसेमहि स्वाहा समिधते तेजोसे तेजोमय दे स्वाहा नमस्के देमहि मृत्योर्मवाय स्वाहा सूर्यस्य देव चक्षुर्मय वाय स्वाहा सोमस्य देव चित्तमय वाय स्वाहा वायोर्दिमहि प्राणान्मय वाय स्वाहा ब्रह्मणो देमहि बुद्धिमय वाय स्वाहा सप्तते अग्ने समिधत् सप्तजिह्वा सप्तर्षय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सत्पदात्मा यजन्ते सप्तजोनिर्नात्मनस्मा कृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदर्भुक्तः स्वाहा जोर्भुक्तः स्वाहा पृथ्वीभुक्तः स्वाहा अग्निर्जेन्नं वेदिर्जेन्नं जोर्जेन्नं पृथ्वीर्जेन्नं वोषवदस्पदरास्त्रज्जैवजेर्नग् स्वाहा ऋतदान विद्मा अनुष्टप्रदेन पूर्णमाहुतिञ्जोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यजेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अतिदेन्मग्गुस्तानमदेन्मग्गुस्तादरत्पदेन्मग्गुस्ताः देवतविद प्रासावीहग्निस्तुभ्यो वेदस्तुभ्यो धूमस्तुभ्यो पृथ्वीस्तुभ्यो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तान् आमायकदेवताभ्यो नमः यदा सुखमदास्तानं प्रदक्षामयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च पवित्र में भूया स्वाहा सर्व में भूया स्वाहा अक्षत भक्त चेंज होमि अक्षत में श्रेष्ठां प्रात्यां दक्षिणायां मुद्रायां मुदीचां ऊर्ध्वायां मदराजां मार्जयन्तां पश्चिमतः परदिमपनया अग्निप्रोक्ष्य
आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापमोषधयो मृताम् पृषत्पततो नो वृट्टमेर यस्माः शुद्ध्यन्तान् देवतनकुं शुद्ध्यन्तान् देवतनम् भूतिस्पातेर्लभते सर्वयज्ञकृतं भवेद अग्निर्मानितयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कस्यमस्य त्रयायुषं तद्धेवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाज बलाज सताज सदन्तवट्टशे त्रयायुषम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यकुं सर्वयज्ञकृतं भवेद अग्निर्मारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कस्यपस्य त्रयायुषं यद्धेवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाज बलाज सताज तदन्तवट्टशे त्रयायुषम् आपोजिष्टामयोपवस्थानवोर्जेददातन महेरणाय चक्षुषे योमत्वदमोरधस्तस्य वादयते नः उषदेरव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोजस्यक्षजाय जन्मद आपो जनयदाचनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृतासनात्कृतन्तमयादेव परमोन्नस्वदश्चमै प्रायश्चित्तानि शेषाणि होमकर्माणि वा न वै तानि शेषाणि शेषाणा श्रीकृष्णास्मरणं मदं कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुलोपहार निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनर्पाञ्चर्यां समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः तदात्मदास्तानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च तत्तब्रह्मार्पितमस्तु सर्वं श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் லாஜஹோமம், அதைத் தொடர்ந்து ஹோம காரியங்களை பூர்த்தி செய்யும் பூர்ணாகுதி, பின்பு திருஷ்டி கழிக்கும் வண்டமாக அஞ்சனமிடுதல் என்கிற நிகழ்வும் மங்களகரமாக நிறைவேறியது. இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். திருமால் கண்ணனாய் இந்த பூலோகத்தில் அவதரித்தது ஜீவாத்மாக்களை ரட்சிக்கத்தான். ஆனால் யசோதையின் உடன் பிறந்த கும்பனின் மகளான நீலாதேவி எனும் நப்பின்னையை மணந்த பின் அவளது அழகிலும் குணத்திலும் ஈடுபட்டு தனது அவதார காரியத்தை மறந்து போனானாம். ஆகவேதான் பொறுமைக்கு பெயர் போன பூமி பிராட்டி ஆண்டாளாக அவதரித்து மலைக்குகையில் வாழும் சிங்கத்தை பிடிக்க தெரிந்தவர்கள் எப்படி கட்டி வசப்படுத்துவார்களோ அதுபோல அந்த இளஞ்சிங்கத்தை தான் சூடிக் களைந்த மாலைகளால் கட்டி வசப்படுத்தி அவனுக்கு அவன் அவதாரம் எடுத்த கதையை உணர்த்தி விட்டாளாம். பக்தர்களே, அந்த ஆண்டாள் பாடிய வாரணமாயிரம் பாசுரங்களை இப்போது இந்த தேங்காய்களை உருட்டி விளையாடும் போது அனுசந்தித்தார்கள். இனி அடுத்த நிகழ்வு மாலா பரிவர்த்தனம் என்கிற மாலை மாற்றும் நிகழ்வு. முகூர்த்தம் ஆன பின் முகூர்த்த மாலையை தம்பதிகள் மாற்றிக்கொள்வது வழக்கம்தானே. செடியாய வல்வினைகள் தீர்க்கும் திருமாலே, நெடியானே வெங்கடவா நின் கோயிலின் வாசல், அடியாரும் வானவரும் அரம்பையரும் கிடந்து எங்கும் படியாய்க் கிடந்துன் பவளவாய்க் காண்பேனே. குலசேகர ஆழ்வாரின் அழகான பாசுரம். முடியாலும் மன்னராக பிறந்தும் கலியுக தெய்வமாம் திருவேங்கடமுடையானால் ஈர்க்கப்பட்டு அந்த எம்பெருமானையே முப்போதும் தரிசித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்கிற வேட்கையால் அவரது சந்நிதியின் வாயிலில் படியாய் கிடக்கும் பாக்கியத்தை வாண்டினார். அந்த திருவேங்கடத்தை எம்பெருமானின் உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமியின் திருக்கல்யாணம் இது. அந்த திருக்கல்யாணத்தில் இப்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் நிகழ்வு மாலா பரிவர்த்தனம். முதலில் எம்பெருமானின் திருத்தோள்களில் சூடிய அந்த புஷ்ப மாலையை
அவரது திருமார்பு நாச்சியாரான ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பித்து இதோ அவளது மேனி பரிமளத்துடன் கூடிய அந்த மாலையை எம்பெருமானின் திருத்தோள்களில் கொண்டு போய் சமர்ப்பித்திருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. எம்பெருமானுக்கு சூரியனையும் சந்திரனையும் போன்றவர்கள் ஸ்ரீதேவி தாயாரும் பூமிதேவி தாயாரும். ஆகவே சூரியனைப் போன்ற பிரகாசமான ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் இப்போது அடுத்து சந்திரனைப் போல குளுமையை அள்ளித்தரும் பூமிதேவி தாயாருக்கு கொண்டு போய் அந்த புஷ்பமாலையை சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. எம்பெருமானின் இரு கண்களில் வலக்கண் உயர்ந்ததா இடக்கண் உயர்ந்ததா என்று பாகுபாடு உண்டா? நம் போன்ற பக்தர்களிடையே பாகுபாடு பார்க்காத பகவான் தன்னுடைய தேவியரில் பாகுபாடு பார்ப்பானா? ஆகவேதான் இப்போது அதையடுத்து பூமிதேவிக்கும் தன்னுடைய புஷ்பமாலையை அனுப்பித்தான் எம்பெருமான். அவன் சூடிய புஷ்பமாலை தாயாருக்கு எவ்வளவு உகப்பை தந்ததோ அதே போல தாயார் சூடிய மாலை எம்பெருமானுக்கும் இதோ மிகுந்த உகப்பை தரும் என்பதில் எந்தவிதமான ஆச்சரியமும் இல்லை. இதையடுத்து தாயார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு அருகே கொண்டு சேர்த்து ஸ்ரீபூ சமேத சீனிவாச பெருமாளை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை நாம் பெற உள்ளோம். அடுத்து அர்ச்சக சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதையானதும் தலம்புராலு என்கிற அக்ஷதாரோபண நிகழ்வு நடைபெற உள்ளது. திருக்கல்யாணம் முடிவு பெற்றதும் மங்கள அட்சதையை சமர்ப்பிப்பது வழக்கம்தானே. இப்போது தாயார்களுக்கும் எம்பெருமானுக்கும் அந்த மங்கள அட்சதையை சமர்ப்பித்து முடிவாக கற்பூர மங்கள ஹாரத்தியுடன் திருக்கல்யாணம் நிறைவுக்கு வரும். பக்தர்களே, இந்த திருக்கல்யாணத்தை தரிசனம் செய்த அந்த பக்தர்களுக்கும் இருந்த இடத்திலிருந்தே அதை தரிசித்த நமக்கும் எம்பெருமானின் திருவருள் கிட்ட மனதார பிரார்த்தித்துக் கொண்டு வர்ணனையை நிறைவு செய்கிறேன். கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి